اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عید قرباں عید الاضحیٰ کے موقع پر ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان عید، اور آپ سبھی کو میں کہتی ہوں خوش آمدید۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQTV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کو اور تمام عالم اسلام کو عید قرباں کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ صرف خوشی ہی نہیں بلکہ یاد ہے ایک عظیم قربانی کی، یاد ہے ایک باپ کے ایمان اور ایک بیٹے کی اطاعت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سوال کے، بس دل میں کوئی بھی لرزہ نہیں، دل گھبرایا نہیں، بس ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اور اسی عظیم قربانی کو ہر سال مسلمان دنیا بھر میں بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی دیکھ کر، یہ عظیم ایثار دیکھ کر، یہ عظیم جذبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور اسی کے ذریعے ایک دمبا بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جو ہم سنت ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، ہم سبھی آج منا رہے ہیں۔ اور آج ہے جناب اسپیشلی عید کا تیسرا دن، اور ARYQTV کے نیٹ ورک کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ARYQTV کے نیٹ ورک کے وہ ستارے، وہ اسٹارز جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، میرے بھی فیوریٹ ہیں، آپ کے بھی فیوریٹ ہیں، اور دے آل آر امیزنگ۔ اور یقیناً آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کیونکہ اسپیشلی اگر ہم بات کریں عید قرباں کی، تو جہاں مردوں کی مصروفیات ہوتی ہیں وہاں پر جو خواتین ہوتی ہیں ان کی مصروفیات کچن میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے ستارے موجود ہیں جن سے ہم آپ کو انٹروڈیوس بھی کروائیں گے۔ آج ان سے ہم مزے کی باتیں بھی کریں گے، لیکن صرف باتیں ہی نہیں ہوں گی جناب، آج کی اسپیشل عید ہونے والی ہے۔ آج ARYQTV کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ماحول کچھ خاص ہے، اور ماحول کیوں خاص ہے جناب؟ آج ہم ان کے ساتھ کچھ گیمز بھی کھیلیں گے، کچھ سوالات بھی ہوں گے، اور یادوں بھری باتیں بھی ہوں گی، مسکراہٹیں بھی ہوں گی۔ تو بلا تاخیر ہمارے جو ڈرائنگ روم میں موجود مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ میری پہلی مہمان شخصیت اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ سب یقیناً انہیں بہت پسند کرتے ہیں، آپ سب کی بہت ہی پیاری ہیں، تو ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ نورین فائز صاحبہ۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ سے۔ ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کی جو ڈریسنگ سلیکشن ہے وہ کہاں سے کرتی ہیں، یہ اپنے کسی ڈیزائنر سے اپنا ڈریس بنواتی ہیں یا پھر خود ڈیزائن کرتی ہیں؟ ساری باتیں آج ان سے جانیں گے، لیکن انہی کے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہیں وہ بھی آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ سب کی دونوں بہنیں ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی پیارا ARYQTV کے نیٹ ورک کے اسٹارز ہیں، بہت پیاری ثنا خوانی کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ فہیم یوسف اور سحرہ دل یوسف۔ السلام علیکم، آپ دونوں کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ سے بھی ہم جانیں گے ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور آج ماشاءاللہ دونوں سیم ڈریس پہن کر آئی ہیں، تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ اپنی ڈریسنگ جو ہے کیسے سلیکٹ کرتی ہیں۔ دونوں کی ماشاءاللہ اتنی اچھی بانڈنگ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہنیں ہیں، تو ان سے بھی ہم آج یہ سب جانیں گے۔ لیکن انہی کے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہیں، ARYQTV کا بہت ہی پیارا نام ہے، ثنا خوانی کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماہنور خان۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ خیریت سے ہیں ماہنور؟ وعلیکم السلام، آپ تمام کو بہت بہت عید مبارک۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے بھی بات کریں گے، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اور جناب میری دوسری جانب جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعارف کرواؤں گی۔ آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا دن ہے عید کا، تو آج ان لوگوں کی مصروفیات ذرا کم ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان کی دعوت کریں، انہیں بلائیں اپنے ARYQTV کے ڈرائنگ روم میں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ان کا انداز گفتگو ہے، آپ سب پسند کرتے ہیں، آپ سب انہیں سنتے ہیں، عالمہ ہیں، اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ بطول صاحبہ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम खैरियत से अस्सलाम। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आप भी, और आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं वो यकीनन आप सबकी बहुत ही पसंदीदा हैं और हर दिल अजीज़ हैं। हम सब भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा जो है वो कलाम पढ़ती हैं। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है, आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी, जैसे अंदाज़े कलाम आपका प्यारा है, अंदाज़े गुफ्तगू भी बहुत ही प्यारा है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अंबर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहूँगी। ईद मुबारक आपको भी। खैरियत से? कल आपको भी और तमाम देखने वालों को, तमाम आले इस्लाम को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, उन्हीं के साथ एक और प्यारा नाम, ARYQTV का एक नया इजाफा है। ARYQTV के नेटवर्क में एक बहुत प्यारा नाम है, स्कॉलर हैं आप, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व खैरियत से हैं आप भी? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। नज़र, उन्हीं के साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही प्यारा आपका अंदाज़े गुफ्तगू है, एक डिफरेंट उनका वे ऑफ टॉकिंग है माशाल्लाह। बहुत प्यारी स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा आयशा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं आप भी? माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी मसरूफियात भी हम जानेंगे आज। और उन्हीं के साथ नाजरीन जो अगली मेहमान मौजूद हैं, ARYQTV पर आप उन्हें सुनते हैं, बहुत प्यारी सनाख्वानी करती हैं, बहुत अच्छी एक आवाज़ है आपकी, मुनफरिद आपका अंदाज़ गुफ्तगू है, अंदाज़ कलाम आपका बिल्कुल मुनफरिद है। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लारेब सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। और एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को हम कहते हैं ईद मुबारक। आज माशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे शाने ईद पे जो है बहुत ही प्यारे प्यारे ईद कुर्बान मनाने के लिए मेहमान मौजूद हैं, और यकीनन आप सब इनके बारे में जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई हमें भी पता लगे कि ये अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं इनकी। और आज ईद का तीसरा दिन है, तो आप सब हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा, जानिएगा कि ये तमाम जो हमारे साथ स्कॉलर्स हैं, नातख़्वां हैं, इनकी मसरूफियात क्या होती हैं। और आज ईद के तीसरे दिन हमने इन्हें मदऊ किया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आज ये अपने कुछ काम जो है वो पेंडिंग पर रख कर आए हैं या सारी चीज़ें निपटा कर आए हैं। यकीनन आज जो है कुछ ऐसे भी मेहमान होंगे जिनके घर आज कुर्बानी हुई होगी, तो वो अपनी सारी चीज़ें वाइंड अप करके यहाँ पर आए होंगे। तो बिला ताख़िर अपने प्रोग्राम में जो है नाज़रीन सवालात का सिलसिला भी शुरू करेंगे, क्योंकि ईद कुर्बान है और ईद उल अज़हा जो हमें जज्बा इसार देती है, हमें बताती है कि ईद कुर्बान हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए हम ये ईद कुर्बान मनाते हैं। तो इसी पर गुफ्तगू करूँगी मैं। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी आसमा बतूल। ये बताइएगा, ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा, तो इसकी फ़जीलत क्या है और कुर्बानी हमें क्या पैगाम देती है ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, इस पर क्या फरमाएंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। सबसे पहले आप सबको और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम के साथ ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जो ईद कुर्मा है, इसका बिलखसूस एक बड़ा अहम पैगाम है। जिस तरह हमारे लिए ईद उल फित्र का एक पैगाम होता है कि हम इबादत के साथ, इबादत से हम तक़वा हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं, हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत लेकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी का एक जो मैसेज है वो लोगों को दे रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जा बजा मुकामात पर फरमाया कि अपनी मनपसंद चीज़ों को अगर तुम देते हो अल्लाह की राह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उसका अजर देता है, इनाम देता है तुम्हें। तो ईद कुर्बान के ऊपर हम कुर्बानी कर रहे होते हैं। दरअसल वो सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है, वो हमारे इसार की कुर्बानी भी है, हमारी मोहब्बत भी है जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हमारे जितने भी प्यारे हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे अगर नाला हैं, नाराज़ हैं, हमें उनको मनाना चाहिए, अपनी अना को तोड़ के उनके पास जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक मुसरत का, एक जश्न का मौका है, तो यकीनन हमें सबको ज्वाइन करना चाहिए और सबको अपने घर बुलाना चाहिए। बिल्कुल। और ईद कुर्बान जो है, स्पेशली अगर हम बात करें तो ईद कुर्बान जो है वो मेहमान नवाजी का भी एक बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है। और हमारे साथ जो है दूसरे स्कॉलर मौजूद हैं। हम बात करते हैं आसमा बतूल से, हमने पूछा। उन्हीं के साथ नाज़रीन एक और स्कॉलर हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसके पैगाम को समझ सकें। ईद कुर्बान का पैगाम क्या है, ईद कुर्बान हमें क्या मैसेज देती है, तो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ सदफ फातिमा है। सदफ, ये बताइएगा कि ईद कुर्बान हमें क्या मैसेज देती है? जी ज़रूर माइला। ईद कुर्बानी सिर्फ़ एक त्यौहार या एक रस्म नहीं है, बल्कि ये इसार, मोहब्बत, इताअत, तक़वा, इन तमाम जज्बों की तस्वीर है और हमें इन तमाम जज्बों का सबक देती है, मैसेज देती है। और इसको हम अगर अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को उठाएं और हम देखें कि क्या हम भी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी अनाओं को,
اپنے غرور کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے، کیا ہم یہ سب قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ قربانی کا، جیسے آپ نے جب پروگرام شروع کیا آپ آلریڈی بتا چکی ہیں، تو بس پریسائزلی میں کہوں گی کہ جس طرح سے یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا جو جذبہ کیا ارادہ ہی کیا، تو اللہ پاک نے کس طرح سے ان کو نواز دیا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مجھے ان کا خون یا ان کا جو قربانی ہے، جو ان کا خون ہے یا گوشت ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو میسج ہے یہ تقویٰ کا میسج ہے، اور جو چھوڑ دے سب کچھ رب کی رضا کے واسطے، پھر وہی نظر آتا ہے کعبے کی فضا کے واسطے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت پیارا میسج آپ نے دیا۔ اور ہمارے ساتھ حافظہ عائشہ بھی موجود ہیں۔ عائشہ یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے دونوں نے بتایا کہ عید قرباں ہمیں کیا سبق دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے، یہ چیز مطلب کیسے بچوں کو بتایا جائے۔ اکثر بچے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں کہ میرا جانور کہاں چلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو سمجھانی ہیں، بچوں کو سمجھائیں گے تبھی جا کے انہیں سمجھ آئے گی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ قربانی ہمیں سب سے پہلا سبق ہی صبر کا دے رہی ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی عہد مبارکہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اور ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا کہ بھئی قربان کرنا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلا سبق ہی صبر کا مل رہا ہے، تقویٰ کا مل رہا ہے، استقامت کا مل رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ توکل علی اللہ کا مل رہا ہے۔ اور جو یہ قربانی ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی بندہ میری رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو پھر میں قیامت تک اس کا نام اس طرح جو ہے وہ لیا جانے والا بنا دیتا ہوں کہ ہر سال ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہم جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم صفا و مروہ کرتے ہیں، تو ہم وہاں سے حضرت بی بی ہاجرہ کی جو ہے نا وہ یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو ہم وہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ارادے بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا سبق ہی یہی مل رہا ہے، ہمیں صبر، توکل علی اللہ، ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں قربانی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی تمام تر جو خلش ہمارے دل میں ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، ہر چیز کو ختم کر دینا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جس شخص نے میری رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا، میری رضا کے لیے کسی کو گلے لگا لیا، تو قیامت کے دن میرے عرش کے علاوہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، تو وہ شخص جو میری رضا کی خاطر ہر چیز قربان کر رہا ہے تو اسے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ، یقیناً بہت پیارا میسج ہے کہ صرف ایک ارادہ ہی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عظیم قربانی کو رحمت کا نشاں بنا دیا۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نورین فائز موجود ہیں، تو نورین باجی میں چاہوں گی کہ ترنم میں ہم ایک بریک پر چلے جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں ہی شکار ہو گئی جی اچھا، آپ ہماری سینئر ہیں تو ہم نے سوچا آج آپ سے بریک لیتے۔ عید شو میں آیا ہے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ عید آئی، 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 رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، عید مبارک، عید
मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक नाज़रीन, खुश आमदीद एक मरतबा फिर शान ईद में आप सभी को कहती हूँ खुश आमदीद। ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद आपको पेश करते हैं और नारिफ आप तशरीफ़ रखें, आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है इस सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, अब हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि हम नौरीन बाजी से जानेंगे कि नौरीन बाजी की जो आउटफिट की सिलेक्शन है वो कैसी होती है। नौरीन बाजी किसी डिज़ाइनर से अपना जो आउटफिट है वो बनवाती हैं या फिर खुद ही डिज़ाइन करती हैं? जी नौरीन बाजी, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? नहीं, डिज़ाइनर हमारे आगे क्या बेचते हैं नहीं, वो बात नहीं है। पहले ऐसा होता था कि हम अपने जो थे वो खुद ही डिज़ाइन कर दिया करते थे, कभी बेले लगा रहे हैं, कभी स्टोन उसके अंदर चिपका रहे हैं। अब जो है वो इतने अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं कि उसमें हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम खुद से कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो लगी हुई होती है उसके साथ, तो इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स आपको पसंद हो कि मैंने सिर्फ यही कलर्स पहनने हैं? अच्छा, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे जो मुझे डार्क कलर पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो लेकिन आज माशाल्लाह आपने थोड़ा लाइट पहना है और तो ज़ाहिर है अब हर जगह अपनी पसंद नहीं चल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज लाइट है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। नाज़रीन, उनसे हम ये भी जानेंगे कि ईद की मसरूफियात क्या हैं, लेकिन हमारे साथ जो दो बहनें प्यारी प्यारी मौजूद हैं, सुमेरा फ़हीम यूसुफ और सहर अदील यूसुफ, उनके बारे में भी जानते हैं कि दोनों माशाल्लाह सेम ड्रेसिंग कर आई हैं आज, और कैसे आपकी सिलेक्शन होती है। माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे है? बॉन्डिंग तो शुरू से ही है अल्हम्दुलिल्लाह माइला, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है वो इस वजह से कि कभी मैं कर लेती हूँ दोनों के ड्रेसेस अरेंज, कभी ये कर लेती हैं, और डिज़ाइनिंग खुद कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि दोनों के मशवरे से काम हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी ईद के दिन लड़ाई हो गई हो? अक्सर ऐसा होता है ना बहनों में, किसी ड्रेस के मामले में ऐसा होता है कि अक्सर बहनें लड़ जाती हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई तो कभी भी नहीं होती, आम दिनों में भी नहीं होती, तो ईद पे क्या होगी? बता दें क्योंकि हम सहर मुझसे एक्चुअली बहुत छोटी हैं, तो इनसे तो लड़ाई बनती ही नहीं है। अच्छा, सहर कभी लड़ती हैं? नहीं, भी ऐसा होता है ना, बड़ी बहनों से नखरे करवा रहे होते हैं अपने, कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि नहीं पहले खाते हैं हम लोग, नखरे करते नहीं है। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। हमारे साथ जो है महानूर खान मौजूद हैं। महानूर बड़ी खामोश बैठी हैं, लेकिन वो चाह रही हैं कि उन्हें कुछ कहना है। महानूर, आप बताइएगा कि आपकी जो तमाम तर चीज़ें हैं, ईद की तैयारियाँ हो गई या फिर आप किसी महफिल में जाती हैं, प्रोग्राम्स में आती हैं, तो आपकी सारी तैयारियाँ कौन करता है? आपकी मामा आपके साथ करवाती हैं या मेरी फिर मम्मा, आप लोगों ने साइड पे भी देखा होगा कि मम्मा मुझ में कुछ ना कुछ मम्मा लगी रहती हैं। तो होता है लोगों का कि मतलब कि वो खुद से कर लेते हैं। मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जब तक मम्मा का मुझे कोई, मतलब एक होता है ना, अगर मम्मा मुझे कह दें कि ठीक है तो उसका मतलब वो ठीक ही लग रहा है, वो ख़राब नहीं लग रहा। और मम्मा की चॉइस भी बहुत अच्छी है, तो मुझे उन पर बहुत भरोसा है और मेरी हर चीज़ मम्मा खुद ही रखती हैं अभी तक। और क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा नहीं है, मेरी याददाश्त का इशू है। करते हैं आपकी शादी हो जाए फिर आप जिम्मेदारियां वो आपके। असल में मैं एक ही हूँ, तो मम्मा का सारा ध्यान मुझ पे होता है, मेरा सारा ध्यान मम्मा पे होता है, मम्मा का मेरे पर ज्यादा ध्यान होता है। जबरदस्त। तो एक एक चीज छोटी से छोटी वो सारी मम्मा बातों का देखती हैं। निचोड़ ये है कि यही है, ये एक ही है ना, बिल्कुल ये ज़्यादा एक है। हाँ, ये कहते हैं ना कि एक हो नेक हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बताइएगा कि आज ईद का दिन है, ईद का तीसरा दिन है, तो आपकी आज की मसरूफियात क्या आती हैं? और आप जो है महानूर जो है स्पेशली हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाती हैं, तो आज ईद के दिन हमने इन्हें यहाँ बुलाया है, तो जानते हैं कि इनकी मसरूफियात क्या होती हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आज की कुछ खास मसरूफियात ये थी कि आज बस सुबह उठना था और आज एक्साइटमेंट ये थी कि आज ईद का शो है, तो बस उसकी तैयारियों में कि ये चीज़ भी रखनी है, ये चीज़ का कुछ ड्रेस का ये ना रह जाए, कुछ ज्वेलरी का ये ना रह जाए। रह गया या फिर सब नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब हो गया। मम्मा जब मम्मा साथ ने होती किया है ना, सब हो जाता बिल्कुल। हमारे साथ नाज़रीन इस तरफ जो है जो मेहमान मौजूद हैं, तो उनकी जानिब भी बढ़ते हैं और अमर बाजी से जानते हैं कि अमर बाजी आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और आपको कहा जाता है मदीने की कोयल। माशाल्लाह इतना प्यारा आपको खिताब मिला है, तो इस हवाले से बताइएगा कि आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं जब आपको इस खिताब से पुकारा जाता है कि मदीने की कोयल, तो ये चीज़ें शेयर की। ये तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी की जो अचीवमेंट होती है ना, ये वो है, ये लक़ब मिलना। बस ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह वो वक्त लाए ज़ाहिर जब हम कि ये सरकार के मतलब
रूबरू भी शायद अल्लाह करे कि ये कोयल सुभान कूक अल्लाह, सके. सुभान अल्लाह. बस ये एक मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है. वो एक चीज़ है ना, आपकी अपेरेंस में भी वो चीज़ नज़र आ रही होती है बिल्कुल. माशाल्लाह. जब भी यही वजह है कि सब आपको पसंद करते हैं और इतना प्यारा आपका जो है अंदाज़ बयां है, अंदाज़ गुफ्तगू इतना प्यारा है माशाल्लाह. ये बताइएगा अंबर बाजी, आज ईद का तीसरा दिन है, तो आपकी मसरूफियात क्या थी? कुछ काम पेंडिंग पर रख कर आएंगे या फिर नहीं, आज जो मेरा होता है ना, वो मेरे दोनों ज़्यादातर दोनों मैकों का, मतलब दोनों मैकों से मुराद एक ये मेरा मैका और एक अम्मी वाला मैका. तो कुछ बर्तन मेरा वगैरह आप रख कर आएंगे कि बर्तन धोने हैं आपने यहाँ से जाके, या फिर सारे काम? वो तो होना ही होता ही है. वो तो ईद आप हो कुछ या भी कर लें, वो तो होता ही है. बर्तन तो हर वक्त मुंह चढ़ा रहे होते हैं आप. लेकिन अभी देखें ना, आप लोगों को हमने किचन से हट के ज़रा टाइम दिया है, यहाँ बुलाया है ताकि आप लोगों के ऊपर ज़रा जिम्मेदारियाँ आज के दिन कम हो. आज के दिन आप जो है ज़रा बिल्कुल. और आज तीसरा दिन भी है तो थोड़ा रिलैक्स कुछ भी हो, कहीं से भी आप होके आ जाए, लेकिन वो जो एक चाय बनाने वाला प्रोसेस है ना, लोग समझते हैं सिर्फ हमने बैठ के चाय पी है, मगर वो जो पतीलियाँ धोनी होती हैं, वो किचन समेटना होता है, एक वो प्रोसेस भी होता है. ईद के दिन तो लेडीज़ की छुट्टी नहीं होती ना, ईद वाले दिन भी उन्होंने काम ही करना ऐसा होता है. क्यों है? मतलब हम सिर्फ लेडीज़ ही क्यों किचन में जाती हैं? भाई किसी के तो जेंट्स भी अच्छे होते हैं, किसी घरों में वो भी करवाते हैं, हेल्प भी देते हैं, और कोई ये भी कहते हैं अपनी वाइफ्स को कि आप आराम करें, आज हम कर लेते हैं. मुझे सहर बहुत खामोश बैठी है, मुझे लगता है सहर शायद काम नहीं करती घर पे, नहीं, ऐसी बात या ज़्यादा काम करती हैं इसीलिए खामोश है. ऐसी भी बात नहीं है. ज़्यादा काम भी नहीं करती और ये भी नहीं कि बिल्कुल भी काम नहीं करती. असल में मेरी फैमिली बहुत शॉर्ट है. मेरे सास ससुर होते हैं, मैं होते हैं. अच्छा, आप लोग की माशाल्लाह ये तो पता है कि हाइट माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतनी लंबी हाइट है, तो आप लोगों को सफाई वगैरह करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, सीढ़ी वगैरह लगानी नहीं पड़ती होगी? नहीं, ऐसा है? बिल्कुल भी परेशानी, ऐसे ही हाथ चला जाता ऐसे है. हाथ चला सही जाता कह रही हैं है. ये भी नेमत है अल्लाह ताला की कि आप लोगों को ज़्यादा प्यार प्यार से बुला लिया करेंगे, आ जाएगा. मासिया वगैरह आती हैं, वो डर जाती होंगी कि अरे वो तो खुद ही काम कर रही हैं, ऐसा होता है? नहीं, मतलब डस्टिंग वगैरह जो जैसे होती है, झड़ाई वगैरह जो, वो तो हम खुद ही करते हैं. मासियों के तो कहाँ काम, और उनके नापसंद आते हैं. अच्छी बात है. बाकी दूसरी बात जो आपने की कि कहीं जेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ ऐसा है. इनके घर माशाल्लाह करते हैं. मेरे माशाल्लाह पापा जो हैं वो मामा का बहुत हेल्प करते हैं. लेकिन अब जो है मैं खुद कहती हूँ कि नहीं, अब ज़ाहिर है मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि मैं ज़ाहिर एक बेटी हूँ, बहू हूँ, मैं करने दूँ, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा. लेकिन वो फिर भी कहते हैं हट जाओ जो मैं कर रहा हूँ, उनसे बर्दाश्त नहीं होता. लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं करते, ये मैं आपको बता दूँ. पानी का ग्लास तक खिलाकर नहीं रखते. तो मैं यहाँ कह दूँ, लेकिन कहीं आप समझे कि वो भी बहुत हेल्प करवाते, ऐसा कुछ भी नहीं. मेरे हस्बैंड ने ऐसे बताया कि शायद सहर की मैं तो जितना भी खाना अच्छा बना लूँ, मेरे हस्बैंड ना कोई मीनाकारी उसमें निकाल देते हैं. वो बहुत लाड प्यार में वो भी पले, तो वो पानी का ग्लास भी उनको देना पड़ता है, वो खुद नहीं. मैं यही कहती हूँ पापा आप से, भी लाड आपके प्यार अंदर में जब ऐसी करिए ना. आदत है तो बेटे के अंदर भी होनी चाहिए थी. पर ने बिल्कुल सही कहा कि मैं का सब यहाँ शिकायतें हो रही है. तो यही हम नहीं, चाहते मेरे हैं कि हस्बैंड हम ने बैठ 16 साल में एक दफ़ा चाय पिलाई है, एक कप. अच्छा. लेकिन यकीन करो वो 16,000 दफ़ा वो मुझे, मतलब किसी के सामने देखो मैंने मैंने चाय चाय बनाई. कितनी अच्छी बनाता हूँ, क्या हाल हुआ? पूछो चाय कितनी अच्छी बनाता हूँ. वो 16 साल में एक कप जो है ना, वो बारी है. मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं मैं बना के खिलाऊंगा तुम्हें ये सालन, ना देखना कैसे बना. ये मैं भी बोलती है. हूँ, पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा. पहले मेरे हस्बैंड ने बनाया था जब लॉकडाउन था ना, तब उन्होंने डिशेस जो हैं जब फ्री थे तो थोड़ा ट्राई करते थे. कुकिंग बहुत अच्छी की उन्होंने लॉकडाउन में. लेकिन वैसे रेगुलर रूटीन में और अच्छा भी नहीं लगता, ज़ाहिर है थके हुए आते हैं तो अच्छा नहीं लगता. हम हमारी स्कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खामोश बैठी हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी मसरूफियात क्या हैं ईद की. क्या करती हैं आप ईद पर? किचन में आपका टाइम गुजरता है या फिर खाना खाने में? ख़ास तौर पर कोई ना कोई, अब शादी के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अम्मी हैं, मेरी जो सास अम्मी हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं. मतलब मैक्सिमम वही कर रही होती हैं. उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त. और इसके अलावा इस ईद पे वैसे आज के दिन मेरे भाई का निकाह भी है ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. तो उसकी एक अलग मसरूफियत है, वहाँ जाना, वहाँ करना चीज़ें, क्योंकि वालदा के बाद कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, तो बड़ी बहनों पर और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है. तो बस उसकी मसरूफियत है. और बाकी कुछ ना कुछ एक डिश कम अज़ कम बनाने का बहुत शौक है. बेशक वो डिश ख़राब हो जाए या वो अपने मनसब तक पहुंच जाए, बस वो एक बनाने का बहुत शौक है. कौन सी डिश? कोई सी भी? वो बनने के बाद उसका नाम तजवीज़. अच्छा, ये है, ये भी एक कहते फिर हैं तो ना वो अगर कि खराब भी बनेगी तो फिर वो अच्छी बनेगी, वो अच्छी क्योंकि वो बनेगी आपने क्योंकि बनाई होगी. बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो हमें लगता है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, अच्छी तो लग रही है, हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं. सदफ, आप बताइएगा कि आपकी ईद की मसरूफियात क्या हैं, और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुछ काम पेंडिंग पे छोड़ कर आई हैं या फिर सारी चीज़ें करके और आज आप हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने में मौजूद हैं?
काम पेंडिंग पर छोड़ के आना, आई एम नॉट गेटिंग दिस, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते. तब ही नहीं होते. तो जितनी भी छुट्टियां हैं, मतलब ये है कि फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड है या फोर्थ फिफ्थ है, सबसे ज़्यादा जो काम होता है बड़ी ईद का वो ज़्यादा बर्तन धोना होता है ऑब्वियसली क्योंकि छोटा सा छोटा भी काम करें तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बाकी ये कि ऑफ कोर्स काम अभी भी हैं पेंडिंग बहुत सारे, और हमारी फ़र्स्ट डे भी कुर्बानी होती है, सेकंड डे भी कुर्बानी होती है, तो और थर्ड डे जो है वो ऑब्वियसली दावतें वगैरह चल रही होती हैं, तो काम तो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होते काम ख़त्म. हमारे साथ आयशा भी हैं, आयशा से भी जानते हैं और लारिफ से भी पूछते हैं कि बर्तन धोना तो सभी धो लेते हैं बर्तन, लेकिन स्पेशली ईद कुर्बान पर गोश्त को हाथ लगाना, मैंने देखा है अक्सर लड़कियां जो हैं वो गोश्त से घबराती हैं कि नहीं मैंने हाथ नहीं लगाना, और ईद कुर्बान पर तो ऐसा नहीं होता. तो आप लोग भी ऐसे हैं या फिर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले भी मम्मा के साथ गोश्त का काम मैं ही करवाती थी बैठकर पूरा, और शादी के बाद भी है. हाँ, खाना वगैरह बनाने में थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि पहले दिन ससुराल में होती है, दूसरे दिन मैके में होती है, तो पहले दिन जो है वो बड़ी नंदे बना रही हैं और दूसरे दिन जो है वो मम्मा बना के ऑलरेडी. आयशा, मैंने सुना है कि आप तह वाली बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. इसके पीछे क्या राज है? आपसे फरमाइशी की जाती हैं? बिल्कुल. और ये भी मेरे बताइए. ससुराल में किसी को तह वाली बिरयानी बनानी नहीं आती, और वो सिर्फ मैं ही बनाती हूँ. और बाकायदा आयशा, अब आप ज़ाहिर यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे QTV पे मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, तो यकीनन अब वो चाह रहे होंगे कि तह वाली बिरयानी आयशा कैसे बनाती हैं, तो वो रेसिपी अगर आप शेयर कर दें हमारे साथ. चलो, वो तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है. आप ये वो वाला काम कर रही हैं जो पहले वो रेसिपी पे आते ही सिंपल हो गई वो. बुजुर्ग खवातीन से पूछा जाता था कि इसकी बनाता रेसिपी रहता क्या होगी. तो मैं बताऊंगी, लेकिन सब माशाल्लाह भी बोले, सब बता रहे हैं कि किसी के हस्बैंड कोई काम इतना नहीं करते. इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मेरे हस्बैंड हर फन मौला है. माशाल्लाह. आप उनसे घर का सारा काम करवा लें, आप उनसे सिलाई करवा लें, कपड़े धुलवा लें, सफाई करवा लें, आप उनसे कोई और काम करवाना है वो करवा लें, और आप उनसे खाना भी बनवा लें. बहुत सारी ऐसी चीजें आयशा आपको मुझे उन्होंने सिखाई हैं. लेकिन आयशा ने बात चेंज कर दी, हमने रेसिपी पूछी थी आयशा से. भाई अब रेसिपी, प्याज को फ्राई किया, जब आपने प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन, प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन ही होनी चाहिए. आपने गोल्डन ब्राउन प्याज की, आपने वो निकाली, उसके बाद आपने गोश्त वगैरह जो भी आपने वो डाला, और उसको अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के साथ सौते करेंगे. सौते करने के बाद आपने उसमें मसाला घर का डालना है, घर का बाहर का जो भी है वो आपने मिक्स किया, दही टमाटर हरी मिर्ची सब डाली, अच्छी तरीके से उसको भून लिया. बीफ है तो उसको दायरे है गलने के लिए टाइम चाहिए होता है. अगर आपके पास कुकर नहीं है, तो हम कुकर वाले लोग नहीं हैं, डर लगता है कुकर से, तो हम पतीले में ही चढ़ाते हैं. 1-1.5 घंटे में आराम से अच्छा गोश्त गल जाता है. बस फिर उसके बाद सबसे बेसिक काम देखिए, मसाला हर कोई भून लेगा. बिरयानी तह वाली जो होती है उसमें सबसे महारत का काम है चावल गलना, बॉयल करना. चावल की जो कनी है ना, अगर आपने वो तो उसकी कोई टिप शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि आप पहली चीज़, आपने चावल बॉयल करते वक्त सिरका या लीमू लाजमी डालना. इससे आपका चावल कभी भी जो है ना वो सुकड़ेगा नहीं है, वो एकदम बिल्कुल अलग ही रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा. खुला डालना, चावल पे भी और डिपेंड पानी ज़्यादा डालें. बस आप टाइम नोट करें. अगर आप नॉर्मली टाइम जो है ना वो 15 मिनट में फुल बॉयल कर रही है ना, तो आपने 7 से 8 मिनट में चावल हटा देने हैं बस. और जब बिरयानी की आप तह लगाएं तो ऊपर से आप दही और दूध डालें. उससे ये होगा कि आपके जो चावल हैं वो बहुत सॉफ्ट होंगे. और दूध में अक्सर मैं दूध में ना जर्दे का रंग मिक्स करके डालती हूँ, और साथ में केवड़ा. बहुत ज़बरदस्त. नाज़रीन देखें, ये माशाल्लाह हमारे साथ तमाम बिरयानी तैयार है. अब ये देखें, इनसे कहें सर्व भी कर दें, हम खा भी लें. स्कॉलर्स नातखुआ जितने भी हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह वो सुगड़ भी हैं, उन्हें हर काम आते हैं और खाने बनाने में भी एक्सपर्ट्स हैं, मतलब एक बेहतरीन शेफ भी हैं. और यकीनन ये जो रेसिपी आपने बताई है आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अब हम तरन्नुम में ब्रेक लेते हैं हाफिज़ा आयशा से, फिर उसके बाद हम ब्रेक के बाद जो है लारिफ से जानेंगे. आई एम नॉट नातखुआ. नहीं आयशा, लेकिन आप हमें सुनती हैं, हमारी वैसे ही फैमिली का हिस्सा है, तो आप मैं वैसे ही ब्रेक ले लेती हूँ, तरन्नुम में नहीं ले सकती. ट्राई तो कर सकती हैं ना. सब भाग जाएंगे फिर. नहीं भागेंगे क्योंकि हम आपकी फ्रेंड्स हैं. नहीं, मैं वैसे ही ब्रेक ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं. चलिए वैसे ले लें. जी तो नाजरीन, इस प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का. हम ब्रेक पर जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं. आप सब हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.